सो इस ईयर काफ़ी सारे जम्प्स निकल के आए हैं इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री, चाहे वो शोज़ की बात हो, एनिमेटर्स की, एंड इस बार बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिशियन पीटो आज सबकी बात करेंगे। वेरियस कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाएंगे, तो पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ। सो बिगिन। I want to wish my all subscribers and viewers of this video every single Indian for our 75th Independence Day। आज के दिन पे ये वीडियो निकालने का मोटिव है कि इस वीडियो में ईच कैटेगरी के विनर्स को देखें, अदर एनिमेशन एंड आर्टिस्ट इंस्पायर हो, एंड सब इंडियंस में मैसेज जाए कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री भी किसी से कम नहीं है, उसका अलग ही बेस है। और अगर आप भी एक आईसी हेटर है तो ये वीडियो खास आपके लिए है, पूरी वीडियो देखने के लिए ही जाना। सो लेट्स बिगिन। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। तो मैंने इस वीडियो लास्ट 4 डिकेड्स की सोर्स को लिया है, तो इसलिए अगर मैं सेंचुरी की बात करूँ तो लास्ट 4 डिकेड्स की ही बात करूँगा। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज़ बेस्ट गेम चेंजिंग शो ऑफ ऑल टाइम, मतलब जिसके आने के बाद नया ट्रेंड आया, फिर लोग इंस्पायर हुए वैसा ही कुछ करने के लिए। सो द नॉमिनीज फॉर बेस्ट गेम चेंजिंग शोज आ गाया बाया 1982 में बना हुआ, दूरदर्शन वर्धमान 1991 में बना हुआ, दूरदर्शन छोटा भीम 2010 में बनने वाला, पोगो T2 2020 में, एंड द अवार्ड फॉर द गेम चेंजिंग शो गोज टू is none other than Vardhan by Doordarshan for make animation popular on Doordarshan owns channel। एंड इस शो के पॉपुलर होने के बाद कार्टून नेटवर्क इंडिया में आया था। सेकेंड कैटेगरी इज वर्स्ट गेम चेंजिंग अवार्ड गोज टू नन अदर देन लिटिल सिंघम विदाउट एनी नॉमिनेशन एंड डाउट, जिसकी वजह से मूवीज़ के एनिमेटेड वर्जन का वर्स्ट ट्रेंड हुआ। आई कैन फील पेन। हाँ, आई नो कि ये अच्छा था, इसके आगे नहीं। थर्ड कैटेगरी इज बेस्ट गेम चेंजिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम एंड द नॉमिनीज आर रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा 1992 में बना था, रामायण द लेजेंड 2010 में बना था, लव कुश 2009 में बना था, द थ्रोन ऑफ वाली 2014 में बना था, एंड द विनर फॉर द बेस्ट गेम चेंजिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम गोज टू रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। द रीजन इज दैट कि ये मूवी इंडियन एनिमेशन के गॉड मिस्टर राम मोहन शर्मा ने जापानीज एनिमेटर यूगो साको एंड हिज कंपनी निप्पॉन एनिमेशन के साथ मिलकर बनाई, एंड उस टाइम के होने के बाद भी इसका एनिमेशन एनिमे टाइप है। Fourth category is Best Game Changing Movie Series of All Time, and the nominees are My Name is Raj 2002 to 2006, Kid Krish 2012 to 2015, Krish Trish and Balti Boy 2004 to 2009, Bal Hanuman plus Legend of Hanuman 2000 to 2014, Bal Ganesh 2004 to 2016, and the award goes to the one and only KTB movie series due to its moral stories, clear animation, bright vision. Fifth category is for best shows of the decade. Nominees are T2 2020, Bandbuda and Burbak 2015, Little Krishna 2014, Kemonache 2011, Mighty Little Bhim 2020, and the award goes to the Little Krishna 2014 for the best stories. Every single episode teaches many lessons. It is the only that increases its value in every episode. However, it has only 12 episodes, but still it is badass, and Kemonache can win this award if it don't loses its originality in second season. Next category is best shows of 2020 to 2021. Nominees are T2 2020, Mighty Little Bhim 2020, Good Dude 2020, Ninja Hattori 2020. Before I announce the winner, I want to tell why Ninja Hattori is here. So it is here because since 2013 it has been animated in India by Reliance Animation, and in 2020 it get a new season, that's why. So now the winner time. So the award for the best show of 2020 to 2021 goes to T2 because its animation is never being seen in Indian industry, and its story is very comparable to Kodomomuke animes. Its character is fantastic, its dialogues are subjugated to attract Indian kids, and it has a very sweet combo of everything. Next category is best animated TV movies of decade, and the nominees are Chhota Bheem and Krishna Rise of Kirmada, Chhota Bheem and Krishna 2, 3, 4, Chhota Bheem and Throne of Bali, Little Krishna 1, 2, 3. So the award goes to Chhota Bheem and Krishna Rise of Kirmada
because its story is not what you see in episodes like Laddu Khao and Pelo. Laddu Khao and Pelo. In this movie, the story has its own glory. It has a variety of connected stories. A movie that teaches kids that we should have faith in God in big disaster. तो 8 कैटेगरी है बेस्ट थिएट्रिकल मूवी ऑफ डिकेड। तो नॉमिनीज है महाभारत 2013, रामायण 2011, लेजेंड ऑफ हनुमान रिटर्न्स 2014। सिर्फ 3 नॉमिनीज है क्योंकि इंडिया में ज़्यादा एनिमेटेड मूवीज रिलीज नहीं हुई है। तो अवार्ड जाता है लेजेंड ऑफ हनुमान रिटर्न्स। आसमां को छू कर देखो, तारों की करे सवारी, चलो चलो चलो। 9वीं कैटेगरी की तरफ बढ़ते। 9वीं कैटेगरी है वर्स्ट शो ऑफ डिकेड। नॉमिनीज है गैजेट गुरु गणेशा 2020, सेल्फी विद बजरंगी 2019, स्मैशिंग सिम्बा 2020, दबंग एनिमेटेड सीरीज 2021। और वर्स्ट शो है गेस करो गेस करो गेस करो, स्मैशिंग सिम्बा, दबंग और गैजेट गुरु गणेशा। रोहित शेट्टी क्या कर रहे हैं भाई, मतलब कुछ भी, जरा कुछ अच्छा बनाओ। तो चलो 10th कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। 10th कैटेगरी है वर्स्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम। नॉमिनी है रोड साइड रोमियो 2009 की, छोटा भीम एंड द राइज ऑफ दामियान 2018 की, भाई कर्स ऑफ दामियान जैसे लेजेंडरी के सीक्वल ऐसा बनाया है ग्रीन गोल्ड ने है। छोटा भीम कुंफू धमाका 2019, मास्टर ऑफ शाओलिन, उसका भी कैसा प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन के साथ उन्होंने सीक्वल बनाया। लेकिन उस मूवी का 3D एनिमेशन हॉलीवुड के लेवल जितना था, ये मुझे मानना पड़े। तो बढ़ते हैं 11th कैटेगरी की तरफ। तो 11th कैटेगरी का नाम है बेस्ट एनिमेशन इन अ शो। नॉमिनीज आर टीटू, हनी बनी, बाहुबली द लेजेंड, गोलमाल जूनियर एंड अवार्ड गोज टू टीटू और हनी बनी। अब ये मत कहना कि एनिमेशन से किसी शो को बेस्ट मत बोलो। तो सुनो, मैं सिर्फ एनिमेशन के फैक्टर बोल रहा हूँ, ओवरऑल नहीं। 12th कैटेगरी वर्स्ट एनिमेशन इन अ शो एंड द अवार्ड गोज टू विदाउट एनी डाउट सुपर भीम। लेकिन सुपर भीम का एनिमेशन मोटू पतलू से तो बेटर ही था, ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो 12वीं कैटेगरी है वर्स्ट एनिमेशन इन अ शो एंड द अवार्ड गोज टू विदाउट एनी डाउट। 13th कैटेगरी बेस्ट स्पिन ऑफ ऑल टाइम। नॉमिनी आर माइटी लिटिल भीम, गुड्डू, अर्जुन द प्रिंस ऑफ बाली, विक्रम एंड मुंजा। एंड द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्पिन ऑफ ऑल टाइम गोज टू विक्रम एंड मुंजा, जो कि डिज्नी के लाइव एक्शन शो विक्रम एंड विताल की नहीं है, वो है एडवेंचर्स ऑफ किंग विक्रम का स्पिन ऑफ सीरीज। और ये बेस्ट एनिमेटेड सीरीज इंडिया की मानी जा सकती। नेक्स्ट कैटेगरी है वर्स्ट स्पिन ऑफ ऑल टाइम। नॉमिनीज है माइटी राजू, इंस्पेक्टर चिंगम, पिना और द भूत बंदूस करके कुछ तो है। एंड द अवार्ड गोज टू इंस्पेक्टर चिंगम, क्योंकि इसकी एनिमेशन तो बहुत बारीकी से की गई है, पर इसका एनिमेशन में कैरेक्टर डिज़ाइन एकदम लो है एंड इसकी स्टोरी बहुत ही वर्स्ट और प्रेडिक्टेबल है। 15th कैटेगरी है बेस्ट मूवी सीरीज अडेप्टेड शो। नॉमिनीज आर लिटिल सिंगम, गोलमाल जूनियर, छोटी आनंदी, फुकरी बॉयज, शक्तिमान द एनिमेटेड series, and the award goes to none other than the Shaktiman and the animated series for its animation and proper adaptation without any flaw. The suit is good but can be improved. ये एनिमेटेड सीरीज जो 1997 से 1998 मेरे ख्याल से जो शक्तिमान लाइव एक्शन सीरीज आई थी उस पर बेस्ड थी, और नो डाउट ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड सीरीज है 26 एपिसोड्स के साथ। इसका एनिमेशन बहुत ही अच्छा था, पर इसमें कॉमेडी की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसा मेरा ओपिनियन। 16th category is best theme song of all time. Nominees Chota Bheem, Krishna Balaram, Motu Patlu, Fukre Boys, Badbulkar Bulbak, and the New Legend of Hanuman. And the winners are New Legend of Hanuman and Motu Patlu. The reason is Sukhvinder Singh's chorus and voice texture are unbeatable. The music is the plus point for it.
If you have musical knowledge, then you can understand and the new legend of Hanuman. The lyrics and harmony plus melody are fantastic. The singer's voice match with the harmony change. The vocals and voice huskiness. That's all. आज की वीडियो में बस इतना ही. आपको जो अच्छा लगे बता दो, कोई ओपिनियन या सजेशन है वो भी. एंड नेक्स्ट अवॉच एनिमे पे आएगा 2 अक्टूबर को. सो बी रेडी एंड बाय बाय. बीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.